मैं डिफेंस में भी जा सकता हूँ, मिलिट्री में भी जा सकता हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी जा सकता हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी में जा सकता हूँ। ऊपर तो अभी मैं देखा ही नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ 7D बता रहा हूँ, ठीक है। जब मेरे पास 7 हॉबी यही है प्रिपेयर करने की, मैं कितना लोड बढ़ा रहा हूँ अपना। तो डोंट बी डिसऑनेस्ट, दैट्स रूल नंबर 101, दैट्स 101 ऑफ इंटरव्यू। यू डोंट हैव टू बी डिसऑनेस्ट. Whatever you are, truly say that with honesty, utmost sincerity. And if you don't have anything with respect to college also, this etc section that I talked about yesterday also, there is a reason why this etc is here. So starting with how it should not look like. Okay, this is what it should not look like. Now observe this very carefully. This is a DAF, of course. Somebody filled this DAF a previous year. Won't name the person. I won't name also whether the person is in civil services or not. But the first impression, how does this look to you all? बताओ. इंग्लिश हिंदी ऑफ कोर्स, कुछ भी बोलो. यूनिवर्सिटी का नाम बहुत ज्यादा है. ओके, गुड पॉइंट. यूनिवर्सिटी रिपीट हो रही है. यूनिवर्सिटी का नाम ज्यादा है. ओके, गुड. व्हाट एल्स? What's the first impression when you see this 7 ABCD? भरा भरा है, chaotic लग रहा है. करेक्ट, chaotic. और इसको मैं बेटर रिफ्रेस करूंगा तो एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं लग रहा है. बट ये चलो, ये कंसर्न भी इफ वी कैन अवॉइड सेफली. बट मेजर इशू क्या है? थीम्स. वी फिल दिस फॉर्म फॉर थीम्स बिकॉज इंटरव्यू में द क्वेश्चन दैट विल कम फ्रॉम द थीम्स दैट यू हैव फिल्ड हेयर. अब इन्होंने देखो, एक तो ऑफ कोर्स ये बहुत क्वालिफाइड पर्सन है, आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, लॉयर हैं. अब इन्होंने मेडिटेशन, विपासना, ऑल्टरनेटिव रॉक म्यूजिक, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज 1, IPR 2, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड स्ट्रेटेजिक थॉट 3, exploring genres of alternative music 4, playing and watching football 5, basic Wikipedia editing 6, and Vipassana meditation 7. 7 hobbies in 7D. No doubt this person was extremely talented. I've met the person offline. We did several one-to-ones. Extremely talented person. But we don't have to show this, or we have to kind of restrict the tendency to show off whatever we have achieved in life. Because every one of you have cleared mains, and there is an accepted understanding that you know a certain level of GS. You know certain issues that concerns society, international relations, politics, economy, 360-degree wise. And that is more than sufficient. Now they want to know whether you have some extra elements in your personality which they could not look from your GS mains thing. Correct? Hence we do this. अब 7 hobbies लिख देना. It's just not 7 hobbies, it's 7 different themes. Right? तो मुझे टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज प्रिपेयर करना पड़ेगा. पूरा AI, जेन AI, जो भी उसके साथ साथ चल रहा है सब कुछ, ठीक है. IPR, इंटरनेशनल रिलेशन एंड स्ट्रेटेजिक थॉट. अब मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कहाँ करूंगा? मैं डिफेंस में भी जा सकता हूँ, मिलिट्री में भी जा सकता हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी जा सकता हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी में जा सकता हूँ. ऊपर तो अभी मैं देखा ही नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ 7D बता रहा हूँ, ठीक है. जब मेरे पास 7 हॉबी यही है प्रिपेयर करने की, मैं कितना लोड बढ़ा रहा हूँ अपना. आई ऑलरेडी एम एक्सपेक्टेड टू नो अबाउट माई ग्रेजुएशन. आई एम ऑलरेडी एक्सपेक्टेड टू नो अबाउट माई ऑप्शनल. ऊपर से 7 मैंने हॉबी में डाल दिया. केयरफुल, प्लीज केयरफुल. हैव अ सीट.
I've just started, don't worry. So this is what we don't have to do. To new joinees, this is what a DAF should not look like, or the hobby section should not look like. Not because the person cannot defend it or person is not talented enough to defend it. It's not like that. But so many areas to prepare, so many themes to prepare. And themes can be of current, theme can be of static. So I already have my optional graduation and my profession to prepare. If I'm a lawyer, if I'm a computer science professional, software engineer, I already have that industry opened up for me. Apart from that, 7 more things. Not only the static, but also the current. So this is not how a DAF should look like. Okay, that's one. Then, of course, here in 7A also, semi-finalist, sure, it's a prize. We'll of course discuss what we can write, but we are saying that it's not that he should or she should not have written like this. But if the person has 8 categories opened up here only, there is no need to write more categories here, right? 1, 2, 3, 11, and at least 5 here, 13. So the person has roughly 10 areas, if I assume, to prepare. Apart from graduation, optional, and the job the person is doing. Imagine the amount of burden the person will have. And apart from national, international current affairs, news is expected to be prepared by everyone, right? So you have to be strategically deciding how to fill 7 ABCD, the famous 7 ABCD, and this year the same section. Okay, understood? Do we have any doubts so far with respect to not filling? This is how it should not look like. Any doubts there? Okay, I had another thing to show, but probably I'll have to open up. Okay. Now this is how it should look like. Compared to that, this is so much better. Why? Because one, it's crisp. The language is very, very crisp. Effective altruism. Okay. Writing book reviews. Spending time with pet dogs. Reading. Right? Cleverly, of course, school wasn't allowed here. But cleverly, the person used AISSC, which falls under a category of, right? So of course, if you do not have anything from school to show, and if you have topped, if you have received something which has been given to you by AISSC or CBSC or any other recognized national board, then you have to do this. Otherwise, you fill 7A in the category of university, state, and national only. You don't have to include your school achievement, right? And be very, very crisp. Merit certificate by CBSC. That's it. Had the person not written AISSC, it would have still been fine. It would have still been fine. Merit certificate by CBSC, more than sufficient, right? Be as crisp as possible. But now the person has opened this theme, All India Secondary School, which means person has to be prepared for education. If I say education, I also mean the NEP. Okay, very important. So it's just not education in the state the person belongs to. The person is from Punjab. So of course, education in Punjab. Now Punjab has a particular party, right? That party is also in Delhi. In Delhi, that party promotes free education. So of course, question on free education. It's as much deep as you can go. Okay, so
you have to be very careful about the theme. If I'm mentioning CBSE, if I'm mentioning education, I have to be well prepared about education. And it's just not about knowing that my state is giving free education or not. Having an opinion, right? Free education should be given or not. Freebie should be given or not. What are the statistics, teacher to student ratio? What are the reforms? Your vision also versus the state that you belong to, what the state is doing, budget numbers. So data also you need to be prepared for. So we fill this section for our interview purpose, right? To expect questions on a theme and how confidently we will be able to explain that theme to the board with data, with examples, with way forwards. Particularly all your mains knowledge will be handy, but how you present that in mains you have 7 minutes to write. Here you don't. Here you have to answer, in fact close the entire loop of cross questioning in 1.5 to 2 minutes. You just have 15 to 30 seconds to speak first. So if given a question, you start answering in 15 to 30 seconds only. Then a counter comes, you build another thing. That's something else, that's interview skills. But you get the idea, right? That's how you have to plan this section from the perspective of interview and not for mains, not for prelims, right? So identify that if you're good in a particular theme and you also have a prize, medal, scholarship for that, you should be writing that. So you have understood the concept of theme. So this section should have a theme. Also, I have to be brushed up about current affairs and data and examples with respect to that theme. So if given a question, I'm able to answer that, right? I'm passionate about doing that. So don't be dishonest. That's rule number 101. That's 101 of interview. You don't have to be dishonest. Whatever you are, truly say that with honesty, utmost sincerity. Right? So anything you have won in university, state or national. If you have won anything in college, that comes under university itself. If you have won anything under state, anything under district, that comes under state itself, right? So be very, very clever. So you can, of course, don't write college, but write your university. Every college is affiliated to a university, right? If you have won something in inter-college competition, make it sound as inter-district. Why not? Interstate. Why not? Okay. Similarly, university. If you have won in college, university, inter-university competition, why not? You can do that, right? But be honest. You must have done that. You should not be faking your identity or your hobby or your prize. You should have done that. You can cleverly use inter-college as inter-university. That's fine. That's acceptable. But not more than that. And if you don't have anything with respect to college also, this etc. section that I talked about yesterday also, there is a reason why this etc. is here. So if you have been a working professional and if you have been praised by your bosses for doing a certain project on time, or anything, if you have contributed financially, revenue-wise to that company, if you have handled important clients, you can always use those words. Verbal mention, appreciation, right? Be very, very crisp. So when it comes to giving proofs, of course, आपके मन में होगा proof कैसे लाएं. तो proof के 2-3 तरीके हैं. एक तो of course certificate ही होगा, या वो trophies होंगी जिसकी आप फोटो खींच सकते हो, medals. अदरवाइज अगर आपको अपलॉड किया है किसी सीनियर ने, किसी टीचर ने, किसी मैनेजर ने, और आप उसका उनका सिग्नेचर ले लो एक रिटन फॉर्मेट में, दिस इज टू सर्टिफाई हु इट मे, वो वाले फॉर्मेट में, टू हुम इट मे कंसर्न वाले फॉर्मेट में, और आप उनका लेटर हेड का साइन ले लो, तो आपका हो गया. वो भी आप सर्टिफिकेट का यूज कर सकते हो. ठीक है. अब आप कहोगे हर चीज का तो नहीं है सर्टिफिकेट, ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू से हाउस कैप्टन नहीं है. अब आपको क्या प्रूफ दोगे उसका? कुछ भी प्रूफ नहीं दोगे. तो उतने पे ऑफ कोर्स दे विल एक्सेप्ट. लेकिन आप किसी प्राइस की बात कर रहे हो, स्पेशली 7A की बात कर रहे हो,
7B की बात कर रहे हो, नाउ यू हैव टू हैव अ सर्टिफिकेट टू बैक दिस अप. अर्लियर इट wasn't happening. Of course, the infamous Pooja Khedkar case, UPSC has been absolutely transparent this time. यूपीएससी चाहती है कि जो भी प्रमाण है वो उनको पहले पता होने चाहिए, बाद में झूठ ना बोल पाओ इंटरव्यू तक आते आते. ठीक है, नहीं किया तो नहीं किया, कोई बात नहीं, उसका भी सोल्यूशन है. अगर इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू राइट इन 7A, घबराओ मत, 7D इसीलिए दे रखा है आपको. ठीक है, यूपीएससी ने हर एक चीज बहुत सोच समझ के रखी है. देयर इज अ रीजन. ओके, सो एनी अप्रिसिएशन ऑल्सो यू हैव गॉटन फॉर अ प्रोजेक्ट by your bosses, by your managers, by your team leaders while you were working, you can write that. Any verbal mention, of course. Any appreciation, why not? Any exam you have cleared, most important. सब working professional नहीं है, but हम पढ़ते रहते हैं, हम masters करते हैं, हम और government exams देते रहते हैं. Specifically if you have cleared UPSC का कोई भी exam, CAPF, आपका CDS, right? स्टेट पीसीएस कोई क्वालिफाई किया हो, आरबीआई ग्रेड भी किया हो, डेफिनेटली यू शुड राइट इट डाउन. नॉट ओनली दैट, नेट जेआरएफ, राइट, क्लैट पीजी, वॉट एवर, नीट पीजी, वॉट एवर, राइट दैट डाउन. क्लियर्ड सर्टेन एग्जाम ईयर, दैट्स ऑल्सो दिस, दैट्स ऑल्सो विल फॉलो इन टू एक्सेट्रा. सो इट्स प्राइजेस, मेडल, स्कॉलरशिप एक्सेट्रा, अप्रिसिएशन, जो चीज से आपको सम्मान किया जाता है वो सब आप 7A में डाल सकते हो. ठीक है, स्कूल लास्ट प्रायोरिटी पे रखना जब कुछ नहीं है, और तब वो भी वैसे जब उसको आप सीबीएसई, किसी मिनिस्ट्री, AISSC से जोड़ पाओ. 6th, 7th, 8th, 9th, 10th की अचीवमेंट्स यहां मत डालो. स्कूल टॉप किया है 12th में, स्कॉलरशिप मिली उस चीज की, गवर्नमेंट ने दी, राइट डाउन. बोर्ड ने स्कॉलरशिप दी, स्टेट बोर्ड से बहुत लोग आते हैं, स्टेट बोर्ड की स्कॉलरशिप मिली, लिख दीजिए. सीबीएसई ने, स्कूल बोर्ड से तो अफिलिएट होगा ही ना, तो हाँ आप उसको कर सकते हो, लेकिन वो 12th, हाँ आप वो डाल सकते हो अगर वो 12th में है प्रोवाइडेड, मतलब 8th 9th में ना हो. अगर वो 12th में है, 12th टॉप करने पे आपको जिला की ओर से कोई सम्मान मिला हो, बोर्ड की ओर से कोई सम्मान मिला हो, मंत्रालय की ओर से, सरकार की ओर से, आप जरूर लिख सकती हैं. ठीक है, स्कूल बोर्ड की तरफ से भी मिला है तो बोर्ड तो होगा ना, उस पे बोर्ड तो लिखा होगा ना स्कूल के नीचे, आप डाल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत नीचे मत ले जाइएगा उसको. ठीक है, नीचे मतलब 8th 9th 10th की अचीवमेंट्स, 12th का चलेगा. ठीक है, तो ये मेरिट सर्टिफिकेट जैसी चीज आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, इनकी रैंक आ चुकी है रिजर्व लिस्ट में. मैक्स कितने भर सकते हैं प्राइज मनी स्कॉलरशिप? वही चीज मैं आपको देखो, तो देखिए मैक्सिमम का ऐसे कोई फंडा, जैसे किसी की थीम मैच कर रहा है, 4 भर रहा है, थीम उसकी 2 ही बन गई. समझ गया, देखो तो काम थीम बेस करना होगा. करेक्ट, आइडिया ये होना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा थीम ले आऊं, है ना. देखो एक तो मेरी डैफ की डाइवर्सिटी होनी चाहिए. अब ये डाइवर्सिटी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आपसे कोई सवाल पूछे वहां पर, तो यू शुड बी एबल टू नज देम टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑल्सो. अगर आपके डैफ में 10 चीजें पूछने लायक होंगी, 5 थीम्स पूछने लायक होंगे, अब उतना नहीं कि 13 लिख दो उसकी तरफ, लेकिन अगर आप इंजीनियर हैं और आपका पूरा डैफ टेक का बने जा रहा है, आपने सारे प्रोजेक्ट भी किए हैं वो टेक वाले किए हैं, उसमें कोई एलिमेंट ह्यूमैनिटीज का आ ही नहीं रहा है, कोई एलिमेंट सोसाइटी का नहीं आ रहा है, कोई एलिमेंट प्रोबेबली और किसी चीज का नहीं आ रहा है, तो मैं डैफ को डाइवर्स बनाने के लिए आई विल इन्फेसाइज कि आप वो सारी चीजें डालो जो आपको बियॉन्ड टेकी भी कुछ बताए, जो आपको ऐसा बताए कि ये हाँ ये लड़का सिर्फ टेकी नहीं है, ये इसके ज्यादा आगे है. ठीक है, और भी इसमें खासियत है, खूबियां हैं. तो डैफ हैज टू बी, और दिस पोर्शन हैज टू बी कंसिडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू लेंसेज ऑफ डाइवर्सिटी, कि कितना हम इसको डाइवर्स बना रहे हैं. ठीक है, सो थीम्स, पहले तो हम कितनी थीम्स जनरेट कर पा रहे हैं. बाय थीम्स यू अंडरस्टैंड, एजुकेशन एक थीम है, आरबीआई में काम कर रहे हो तो इकोनॉमी थीम है. ठीक है, स्पोर्ट्स में हो तो वो थीम है. थीम,
हमेशा थीम से सोचना है इस पूरे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। क्वेश्चंस उसी से आएंगे, स्टैटिक भी करंट भी। 7A में कोई डाउट? सर स्कूल लेवल ओलंपियाड्स भी इसमें आ सकते हैं। साक्षी कौन से क्लास में किया है वो मैटर करता है पहले तो, और ओलंपियाड्स अगर 12th वाले हैं तो ठीक है, बट आई वुड नॉट रिकमेंड 8, 9, 10th वाले। ओबीसी एनेक्शर का आपको मैं कॉल पे बताऊंगा, अभी मैं स्पेसिफिकली ये 7 ABCD वाला क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। आई कम एंड डू अ लाइव टुमारो ऑल्सो, डोंट वरी, आई कीप डूइंग लाइव्स। द इंटेंशन ऑफ डूइंग दिस इज कि आप लोग ठीक से फॉर्म फिल करें, ठीक है, एक बार प्रूफ रीड हो जाए, क्योंकि ये ब्रेक कर देगा आपकी चांसेस अगर आप इसको गलत फिल करोगे तो, ठीक है। सर इज इट एडवाइज टू टेक टाइम एंड सबमिट द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ दिस सेक्शन नाउ इटसेल्फ, or it's better to write considerably good one now and later edit it after means? It is important for interview, आपको अभी ही फाइनल ड्राफ्ट सबमिट कर देना चाहिए, बट ऑफ कोर्स आपको पहले बैठना पड़ेगा मेंटर्स के साथ। you should sit with mentors first and discuss. एडिट का ऑप्शन का वेट मत करो, यू नेवर नो यूपीएससी क्या कर दे बाद में, कह दे कि नहीं आप ये सेक्शन नहीं कर सकते एडिट, आप सिर्फ यही सेक्शन एडिट कर सकते हो, देन व्हाट विल यू डू? ठीक है, यूपीएससी इज इन द मोड जहां पे वो रिफॉर्म कर रही है, दिस इज वेरी वेरी क्लियर, दे वांट टू मेक दिस एग्जाम एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल, राइट? सो इफ इट हैज गिवन यू एन ऑप्शन टू फिल नाउ, तो कुछ सोच समझ के दिया है, तो उसका यूज करो। जस्ट बिकॉज दिल्ली सेंटर हाथ से चला जाएगा इस चक्कर में जल्दी मत फॉर्म फिल करो। दिल्ली सेंटर मान लो नहीं भी मिला, हम थोड़ा ट्रैवल कर लेंगे, बट अगर हमारा इंटरव्यू मैसअप हो जाएगा तो फिर उसका पॉइंट नहीं है ना, तो वो ध्यान रखो, ठीक है। दैट्स, आई होप दिस क्लियर्स। आई हैव नथिंग टू राइट इन एबीसी। ओंकार नथिंग टू राइट इन एबीसी, तो फिर हम डी में 4th सेक्शन डाल देंगे, बट ऐसा नहीं होगा यूजुअली कि एबीसी में कुछ भी नहीं है, मतलब दैट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि आपने स्कूल कॉलेज वर्क में ऐसा कुछ भी नहीं किया पढ़ाई के अलावा जो लिखने लायक नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा एक नेगेटिव लाइट में आपको ही पुट कर रहा है। बट जस्ट इन केस नहीं ही है तो फिर अपना 7D का सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा हमें, उसमें 4 पॉइंट्स रखने ही पड़ेंगे, राइट? दैट्स अनदर थिंग। ओके, so 7A I hope is clear to everyone. Sir, research paper publication in 7A. No, Muskan, if you have gotten an award, first prize, second prize, third prize in research paper, then you write write that down in 7A. If you have led a team of research, like led a team that did the research, you can put that in 7C, or nothing of these two, then you can put it in 7D as a part of extracurricular activity or probably hobby. Okay. Can I add merit certificate from National Financial Literacy Assessment Test from class 8th? No. No, Karthik, no. Avoid using class 8th in 7A. सर जी ये कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी तो कुछ भी नहीं है, आप खाली छोड़ दो, आपका फॉर्म फिर भी सबमिट हो जाएगा। हाय, आप खाली छोड़ दोगे तो भी सबमिट हो जाएगा, बट आपको भरना पड़ेगा बिकॉज इंटरव्यू इसी पे आएगा। सर आई एम नॉट फुलफिलिंग द फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ आईपीएस। आईपीएस पे बात करते हैं, रुको। Don't spam, Abhishek. I have understood your question. Let me talk on this later. Sir, research exchange in universities abroad, definitely. You should write that down in probably 7A. If you have been awarded a scholarship, that would be great. Otherwise, in 7C, you can also write down. So new joinees, we have just started like 10 minutes ago, and I showed how a DAF should not look like what you should not write, and focus on themes. So whatever you write should have a theme, because these questions will come in the interview, one. And also so if education is there, so this person has written CBSE, AISSC, so the person was asked about education or supposed to know about education, NEP, current affairs also, static also, from the state the person belongs to, right? So always fill this section because you are expecting a question in the interview. This will be handy in the interview only. Okay, so this is the quick summary. 7A is clear. So school, avoid until unless this. Workplace, definitely you can write. Some exam you have cleared. I am again saying exam, if you have cleared any level of exam in India, of course after graduation, please write it down, right? Because most of the exams are nationally held, right? If you have gotten a rank also, if you have topped that exam,
Write that down. Okay, in 7A specifically. So workplace can be added, exams can be added. Why? Because I'm taking the liberty of this, etc. Okay. Prizes, medals, scholarship are just not your trophies and certificates, but also the verbal appreciation, right? Special mention. If you don't have a certificate, you can always request your managers, your teachers, the institutions who have given you the certificate, and to whom it may concern format, you can get it signed and upload that, right? Specifically for these two sections, they want certificates specifically. For this section, of course, you cannot prove any certificate. For this section, partially you would be needing certificate. For if you were in the student council, you don't get a certificate for that, right? So you can safely avoid that. You can just write down that. We'll come to 7C, don't worry. 7A, any doubts do we have? 7A, कोई doubt आपको? Okay. As far as job is concerned, I have 1 year experience in private and just joined revenue department last 5 months of Maharashtra state. ओंकार, अगर आपको उस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक प्राइवेट में या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कभी भी अपलॉड मिला हो अपने बॉस से, या आपने कोई एक स्पेशल असाइनमेंट क्रैक किया हो, आप वो जरूर बताइए, ठीक है? ओंकार, देखो, अगर वही मैंने कहा, अगर आपको अपने वर्क प्लेस पे भी वर्बल अप्रिसिएशन मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल सकते हो. आफ्टर सीइंग दिस वीडियो आई एम थिंकिंग कि कुछ करा ही नहीं है. मैं तो बस एक नॉर्मल DU पास आउट हूं और स्कूल वगैरह में 8th रैंक तक आया. ऐसा नहीं है दिव्यांशु, ठीक है, ऐसा होता है. यूपीएससी प्रिपरेशन इटसेल्फ इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू, सो डोंट फील दैट लो कि कुछ नहीं किया है. मैंने अगर आप वीडियो स्टार्ट करोगे तो एक डैव दिखाया शुरू में जिन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है. डज नॉट मैटर, आप सब एक ही पेज पे हो अल्टीमेटली, ठीक है? हाँ, तो अपना कॉन्फिडेंस मत गिराओ इस चक्कर में. हाउएवर, जो 7D है, आप हॉबी तो कर ही सकते हो ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तो आपके पास है ही दिखाने के लिए, तो हम उस पर स्ट्रेंथन करेंगे, रादर डिसअपॉइंट होए कि हमारे पास बाकी चीजें नहीं है. सर, मैंने ICAR का पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम क्रैक कर लिया था फॉर वेटनरी, वो क्या लिख सकते हैं? डेफिनेटली आप लिख सकते हो पलक. ओके, 7A में, 7A से लेके कोई डाउट नहीं है, मैं 7B पे जा रहा हूं अब, ठीक है? आई जस्ट होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. So don't worry, I'll be coming up with these sessions 7A, B, C, D के hobbies states के again and again, 2-3 दिन, जब तक आपका ये सारा fear दूर ना हो जाए. आप लेट भरिए फॉर्म, लेकिन सही भरिए. दिल्ली सेंटर मिस हो जाएगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा ट्रैवल कर लेंगे, नो बिग डील, ठीक है? लेकिन इंटरव्यू गड़बड़ हो जाएगी तो फिर पॉइंट नहीं है इतनी मेहनत करने का ना. Sir, do we have to merge all the certificates? I think yes, you have to merge. If not given another option, I have not seen the portal, Chandelier. Okay, 7B. In 7B, they specifically want you to know, or they want to know from you, is that have you played any sport or not? You don't have to write whether you were a captain or whether you won the first prize, second prize in that sport. If you have won first prize, second prize, third prize, use it in 7A and have this language also very well cracked. In 7A, always say first prize, second prize, third prize, runners up, gold medalist. You know, the language that 60-year-old there would understand. The corporate language that you use, finance lead, etc lead, tech lead, social media lead, they won't understand that. So always know that what category of age group will be taking your interview and how familiar are they with these terms, right? So first position, second position, third position, first prize, second prize, gold medalist, these are very very good terminology. Silver medal, bronze medal, they understand this. Okay, president, secretary in 7C, I'll come to that. Okay, so no corporate lingos, no Gen Z's lingo. Okay, now सर, मैं ट्रेजरर था अपनी कॉलेज के डिबेटिंग सोसाइटी में, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है. ठीक है, 7C में बात करते हैं. शुभम, होल्ड ऑन करो थोड़ा. 7B में दे वांट टू नो वेदर यू हैव पार्टिसिपेटेड और प्लेड एनी स्पोर्ट इन तीनों लेवल पे, यूनिवर्सिटी, स्टेट या नेशनल. स्कूल की बात वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन
अगर आप अपने स्कूल में, आपके स्कूल में एक इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन था क्रिकेट का, वॉलीबॉल का, वो स्टेट के अंडर ही आता है, ठीक है, आप डाल सकते हो। ठीक है, आप स्कूल टीम का हिस्सा थे 12th में, 11th में, 10th के बाद, और वो इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन आपके स्कूल में ही हो रहा था, या आपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया अपने डिस्ट्रिक्ट में, जहां मल्टीपल लोग स्कूल्स आए थे डिस्ट्रिक्ट से, वो स्टेट के अंडर आ जाएगा। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, वो एटसेट्रा की लिबर्टी में आप वो कर सकते हो, लेकिन डोंट राइट एनी अचीवमेंट और पोजिशन दैट यू हैव अचीव्ड इन दैट स्पॉट। They just want to know whether you have participated or played. ठीक है, तो कॉलेज क्रिकेट टीम कैप्टन यहां लिख के कोई फायदा नहीं है, ठीक है, रादर लिखना है पार्ट ऑफ कॉलेज क्रिकेट टीम। ठीक है, दैट्स इट। एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता है, एनसीसी जैसे एनएसएस भी होता है, भारत स्काउट गाइड्स भी होता है, ठीक है, बहुत सारी सिमिलर चीज भी होती है जो एक सेम फंडे पे कैरेक्टर बिल्डिंग डिसिप्लिन वाले चीज पे काम करती है। तो अगर आपके पास एनसीसी नहीं है तो एनएसएस कर लो, भारत स्काउट गाइड कर लो, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल। अगेन आई एम टेकिंग द लिबर्टी ऑफ दिस एटसेट्रा। एक एक वर्ड यूपीएससी के ड्राफ्ट में इंपॉर्टेंट होता है। यूपीएससी कुछ भी बिना सोचे समझे ना क्वेश्चन पेपर में लिखता है ना यहां लिखता है, ठीक है, क्योंकि वो समझ रहा है कि कुछ चीजें हैं जो हम मिस कर सकते हैं। तो एनएसएस, भारत स्काउट गाइड जैसी चीज को यू कैन ऑलवेज राइट, लेकिन स्कूल का जिक्र मत करना। और हम सब ऑफ कोर्स बड़े होते हैं, हमें बच्चे होते हैं इंडिया में, खेलते सभी हैं, स्कूल में तो खेलते ही हैं, स्पोर्ट्स पीरियड सबका ही होता था, तो क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल तो हम सभी खेले हैं, लेकिन अब उसको हम यहाँ नहीं डाल सकते। चाहे हम कितने अच्छे फास्ट बॉलर थे अपने ज़माने में स्कूल में, कितने अच्छा बास्केट मार लेते थे दूर से, बट अब नहीं दिखा सकते इसको यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज आपने कुछ रिप्रेजेंट नहीं किया। आप एज अ हॉबी खेल रहे थे, एज अ ईसीए खेल रहे थे। अगर आप स्कूल से लेके अभी तक खेल रहे हो फिर 7D है उसके लिए, लेकिन स्कूल में बस खेला था क्योंकि स्पोर्ट्स पीरियड में कुछ खेलना ही पड़ता था, तो फिर नहीं, अवॉइड करो, ठीक है। इट्स ओके अगर मेरा 7D ब्लैंक जा रहा है, इट्स ओके, ठीक है। अगर है तो प्लीज ऑनेस्टली लिख दो, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे, तो झूठ बोलने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। सर, स्टेट स्कॉलरशिप, गार्गी स्कॉलरशिप इन 10th एंड 12th, यस नेहा लिख सकते हो आप 7A में, 12th वाला लिखना, 10th वाला छोड़ देना। नेहा, यस यू कैन राइट इट डाउन। शुभम सर, इंट्रा कॉलेज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था बट कुछ रैंक नहीं आई, तो अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट है। किस चीज में पार्टिसिपेट किया था वो भी देख लो। अगर आपको लगता है वो थीम इंपॉर्टेंट है तो हम सोच सकते हैं उसको लिखने की। आई हैव एक्टिंग गोल्ड मेडल National Youth Festival, but I have no skill in acting. How is it possible that you are a gold medal and you have no skill in acting? I was needed for a minor role. Okay. I was needed for a minor role. I was in quiz but had to join drama team. So should I put acting medal considering I have no skill? Okay. So they won't ask you to act there. ये नहीं बोलेंगे कि आप राज कपूर की एक्टिंग करके दिखाओ, ये तो नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली, बट हाँ, एक्टिंग एज अ थीम, सिनेमा एज अ थीम, बॉलीवुड मूवीज एज अ थीम, ओटीटी मूवीज एज अ थीम, सिनेमा का कल्चर कितना इंडिया में बदला है, आगे क्या विजन है, ओटीटी रेगुलेशन, ये सब इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए हो जाएगा। तो वही मैंने कहा, अब वो जमाने चले गए कि जब इंटरव्यू में वो सवाल आते थे कि आप शायरी लिखते हैं तो शायरी सुनाइए, आप गाते हैं तो गाना गा दीजिए, आप ऐसे बैठिए, आप ऐसे टाई पहनिए, ये सब दिन चले गए। बैठने का तरीका कैजुअल है, सब खत्म है, गेम ही खत्म है, सब कुछ नहीं होता अब वो पूछते हैं आपके ओपिनियन स्पेसिफिकली ऑन दीज थीम्स एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। तो सिनेमा के लिए अगर सोशियो मैनिक आप प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है, तो आप जरूर लिखिए, वो आपके वहां स्किल टेस्ट नहीं करेंगे। नेहा प्लीज सजेस्ट, नेहा सजेस्ट तो कर दिया, प्लीज लिख दो आप। Received 5 to 8 certificates of drawing at class 8-9. No, not from 8-9, please not. अब ऐसे तो फर्स्ट क्लास में भी मुझे भी कुछ कुछ मिला होता था तो थोड़ी डाल दूंगा, नहीं। 12th क्लास इज फाइन, दैट टू गिवन बाय अ बोर्ड, बिकॉज बोर्ड को हम फिर वो नेशनल में लेके आ जाते हैं या स्टेट में लेके आ जाते हैं, ठीक है, तो उतनी लिबर्टी हम ले सकते हैं। बहुत फायदा मत उठाओ यूपीएससी का।
Sir, I'm currently part of badminton and football team of inter-departmental sports of my state. Of course, you should mention Omkar. This is great achievement. Any doubts in sports? कुछ नहीं है दिखाने के लिए, तो फोमो हो रहा है क्या किसी को? अच्छा, ऐसे कोई हैं जिनको फोमो हो रहा है 7A में, आपको हो रहा है, ठीक है, आपको भी हो रहा है? 7B का ETC थोड़ा और एक्सपांड होता तो जैसे 7A का हुआ, 7B का एक्सपैंड हो जाता। ETC में मैं क्या बना दूं यार, उन्होंने स्पोर्ट्स और NCC के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया ना। NSS भारत स्काउट के अलावा कम्युनिटी वॉलंटियरिंग वगैरह इसमें मैं नहीं डालूंगा, रादर NGO को मैं इसमें डाल दूंगा, ECA में। इसमें ऑलरेडी है, मैं चाहता था कि एक तो उसमें भी गिर जाए तो पूरा बराबर। नहीं, आपके चाहने से सब कुछ नहीं होता है। नहीं, ठीक है, अगर आपका स्पोर्ट्स कॉलम ब्लैंक ही जा रहा है तो कोई इशू नहीं है, लेट इट बी ब्लैंक। रादर हम कुछ फेक कर दें, उससे अच्छा है मॉनेस्टली लिखें जो हमने किया, ठीक है। थीम्स का फंडा हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि ये मेरी थीम खुलेगी, मुझसे सवाल आएंगे, और सवाल ये नहीं आएंगे कि आपको मजा आया कि नहीं, आपको कैसा महसूस हुआ, नहीं सर्टिफिकेट का आपने क्या किया, ये सब नहीं। जेन्युइनली एकेडमिक क्वेश्चंस हैं। सिनेमा आसान थीम नहीं होती प्रिपेयर करना, ठीक है। वो कुछ भी पूछ सकते हैं, करंट भी, अपने जमाने का भी। हिस्ट्री है उसकी एक इकोनॉमी है, उसकी एक सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, कंट्रोवर्शियल मूवीज होती हैं, बैन हो जाती हैं मूवीज, ये सब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चीजें आती हैं। यूपीएससी के विद्यार्थी हो भाई, आर्टिकल 19 वगैरह सब वो पूछेंगे, ठीक है, तो आप ऐसे नहीं बच पाओगे। यस सर, नथिंग टू राइट इन 7A, प्लीज गाइड सर। नहीं है तो छोड़ दो अभिषेक, मैं वही कह रहा हूं, इट्स ओके, ठीक है। फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली चीज से थोड़ा बचो। जिसका है भी वो भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं यूपीएससी इंटरव्यू में, यूपीएससी के हर एक स्टेज पे वो भी फाइट मार ही रहे हैं जिनके पास है। ऐसा नहीं है बहुत सारी अचीवमेंट्स के बाद भी यू हैव अ गारंटीड सिलेक्शन वहां पे। हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड वाले भी मैंने डैफ में देखे हैं, 3-4 साल से मैं सेम काम कर रहा हूं, मेरे पास बहुत डैफ आए, 1000 डैफ है कम से कम। वो बहुत टाइप के लोग देखे हैं मैंने, जिनका डैफ खाली भी रहा है उनकी भी रैंक आई है, जिनका जो ओवर अचीवर रहे उनकी भी आई है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, सेम ही मार्क्स थे या सेम ही रैंक थी, ठीक है। तो इट्स अबाउट योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस देयर कॉन्फिडेंटली, कितने कॉन्फिडेंस से आप बोलते हो, कितने कन्विक्शन से यू से एनीथिंग, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो इन सब छोटी छोटी बातों का फोमो नहीं लेना है, तभी तो 7D दे रखा है ना उन्होंने, कि चलो ठीक है, मान लिया हमने ये स्कूल से लेके अभी तक कुछ नहीं सिर्फ पढ़ाई करता था, उसके मार्क्स में भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हमने मान लिया, चलो, लेकिन कुछ तो हॉबी करता होगा। अब 24 घंटा तो नहीं पढ़ता होगा, किताबें पढ़ता होगा, खेलता होगा, टीवी देखता होगा, गाने सुनता होगा, पेंटिंग करता होगा, खाना बनाता होगा, कुछ तो करता ही होगा, ठीक है। उन सबका इलाज 7D है। और प्रूफ भी मत देना, चलो ठीक है इस चीज का, लेकिन कुछ तो करते होंगे आप लोग, इसीलिए 7D दे रखा है, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज न्यूआंसेस। 7B क्लियर? सर स्पोर्ट्स कैप्टन है और कबड्डी में प्राइज मिला है तो किधर लिखें? स्पोर्ट्स कैप्टन हम 7C में लिखेंगे, मैं आ रहा हूं उस पर, और कबड्डी में जो प्राइज मिला है उसको 7A में डाल दो इसके, ठीक है। सर माई हॉबीज आर मेडिटेशन, टीचिंग स्टूडेंट्स, टॉकिंग टू पेरेंट्स, कुकिंग, डोंट लाफ प्लीज, रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स, शुड आई राइट इट ऑल और नॉट? 7D पे आता हूं नेहा, थोड़ा वेट करो। सर मैंने गूगल फॉर्म भरा था 1-to-1 मेंटरशिप के लिए, किसी का कॉल नहीं आया, ठीक है, बोल देता हूँ। सर आई वॉज अ पार्ट ऑफ मीम सोसाइटी इन कॉलेज। कार्तिक यस, आई वुड नॉट से कि इसको मत लिखो, क्योंकि देखो जनरेशंस बदल रही है एंड मीम आर अ थिंग टुडे, कोई बचा नहीं है मीम से, तो थोड़ी क्यूरोसिटी अगर उनको है कि ये कैसे ऑपरेट करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, मीम बनते कैसे हैं, तो आई थिंक इट कुड बी अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन देयर, ठीक है। तो ये आर्ट है, ऑफ कोर्स मीम बनाना एक आर्ट है, जैसे एक टाइम पे कार्टूनिस्ट जो काम करते थे, अब बहुत फेमस कार्टूनिस्ट रहे हैं हमारे, ठीक है, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया सोशियो पॉलिटिकल रेलेवेंट कार्टून्स बनाए हैं, ठीक है, जिन्होंने समाज की बुराइयों को बहुत उजागर किया। तो मीम भी आजकल अगर हम वैसे यूज करें तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, या वेरी गुड क्राफ्ट, ठीक है। तो कार्तिक यू कैन राइट इट डाउन, डोंट वरी। I got certificate for working excellent at last election by RO. 7A Onkar,
कि appreciated for excellent work at that election. 7D पे आ रहे हैं राज, रुक जाओ. Sir, after filling the place of birth, the village and PO office of current affairs where I was born. हाँ ठीक है. Can I write gym sir? 7D पे आ रहे हैं, रुक जाओ. 7B में gym नहीं लिखना है. Can we write class 12 debate and essay prize in achievement section? No, we can write that in 7C. Coming to 7C. 7B clear? सबको FOMO नहीं होना चाहिए, ठीक है? There should be no FOMO around anything. Okay. 7C. Now, this is your opportunity to also highlight school. अब स्कूल एक ऐसी चीज है जहां पे हम करते ही हैं चीजें, ठीक है? टीचर पकड़ पकड़ के करवाते हैं. हर एक बच्चे को कुछ टीचर्स को एक टास्क मिला ही होता है कि जो स्पोर्ट्स में अच्छा है उसको स्पोर्ट्स में भेजो. जो कुछ नहीं तो क्लास के नुक्कड़ नाटक तो सभी करते हैं. क्लास की स्किट तो होती ही थी, ठीक है? स्पोर्ट्स तो सबके रेड हाउस ब्लू हाउस तो होते ही थे. एनुअल डे होता ही था. स्कूल बेस्ट चीज थी. रियलाइज होता है हमें व्हेन वी ग्रो अप, वी रियलाइज इतनी एक्टिविटीज करने का कभी टाइम मिला नहीं उसके बाद, राइट? तो यूजुअली बहुत कम बच्चे होते हैं जिनके पास स्कूल में कुछ दिखाने को नहीं होता, ठीक है? आई एम श्योर आप सब स्कूल में कुछ अचीव किए ही थे और ये अपॉर्चुनिटी भी है लिखने की. तो यहाँ पे वी स्टार्ट विथ स्कूल ओनली, ठीक है? कॉलेज की अचीवमेंट्स भी चलेंगी, बट अगर स्कूल में है तो दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म और गुड स्पेस टू राइट स्कूल्स अचीवमेंट ऑल्सो. अब जो एक्सेप्टेड चीज है, हेड बॉय हर स्कूल में होता है, हेड गर्ल हर स्कूल में होती है, स्पोर्ट्स कैप्टन, हाउस कैप्टन, ठीक है, और स्टूडेंट काउंसिल का पार्ट, ये तो लगभग हर एक स्कूल्स में एक सिस्टम होता ही है. अब क्लास मॉनिटर तक मत जाओ, क्लास मॉनिटर तक जाना थोड़ा सा हल्का सा वेग लग रहा है, लेकिन हाँ अगर आप उसको प्रीफेक्ट में डालना चाहते हो, ठीक है, मैं उसका भी सोल्यूशन देता हूं. इफ यूर क्लास मॉनिटर्स, ठीक है, वो भी अगर 12th में 11th-12th में, और मैं अगर उसको स्टूडेंट काउंसिल का पार्ट बना दूं तो आई कैन राइट इट एज प्रीफेक्ट, ठीक है? तो रादर देन सेइंग क्लास प्रीफेक्ट और क्लास मॉनिटर, आई वाज प्रीफेक्ट एट स्कूल. सो प्रीफेक्ट का एग्जैक्टली मीनिंग ये होता है कि प्रीफेक्ट थोड़ा फॉर्मल टर्म है, दैट टू फॉर स्टूडेंट काउंसिल रिप्रेजेंटेशन. तो जैसे लार्ज स्टूडेंट काउंसिल्स होते हैं, ऑफ कोर्स, एक तो टॉप पे आपके हेड बॉयज वगैरह हो गए, उसके नीचे फिर सेक्रेटरीज हो गए, फिर प्रीफेक्ट्स भी होते हैं उसी स्टूडेंट काउंसिल में, जिसको कई जगह मॉनिटर कहते हैं. सोफिस्टिकेटेड भाषा में उसको प्रीफेक्ट कहते हैं. है तो ये लीडरशिप पोजीशन ही ना, मतलब आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है? अगर लीडरशिप नहीं, मतलब मॉनिटर क्या है, लीडर ही तो है, क्लास का लीडर है, इसको जिम्मेदारी दी गई है क्लास को मेंटेन करने की, शांत रखने की, जो भी, या क्लास के इश्यूज को रेस करने की टीचर्स के आगे. क्लास का रिप्रेजेंटेटिव ही है ना मॉनिटर. मॉनिटर इज द फेस ऑफ द क्लास. कोई भी टीचर डांटने आती तो यही कहती है ना, हु इज द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास, सब मुझसे बात मत करो, मॉनिटर आओ. तो ऑफ कोर्स लीडरशिप, राइट? सो यू कैन, इफ यू वर अ मॉनिटर, यू कैन राइट इट डाउन एज प्रीफेक्ट. नहीं, इस पे कोई थीम नहीं पकड़ेंगे आपसे, 7C से कोई थीम नहीं पकड़ेंगे, लेकिन नहीं, एक्चुअली एक टाइम था जब क्वेश्चंस आते थे, बट अब नहीं आते हैं, क्योंकि अब इसलिए नहीं आते क्योंकि अब क्वेश्चंस आते हैं ओपिनियंस के. अब इस पे ओपिनियन क्या बनाओगे आप, ठीक है? अब ज्यादातर क्वेश्चंस, अभी जो रीसेंट इंटरव्यू का ट्रेंड चल रहा है अक्रॉस 3-4-5 ईयर्स, वो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस का ज्यादा चल रहा है. एक टाइम जरूर था जब ऐसे स्टैटिक क्वेश्चंस आते थे, वो कैसा लगा टाइप्स, कैसा महसूस हुआ, क्या किया, क्या खोया क्या पाया टाइप्स. 5 लीडरशिप क्वालिटी बताओ, को जो तुमने किया है, व्हाट इज हैप्पीनेस टू यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम. ये सब एक जमाने में आते थे, ठीक है? आपका नाम गोदावरी है तो गोदावरी नदी बताओ. तो इंदिरा गांधी लिखी है डैफ में तो इंदिरा गांधी प्रिपेयर कर लो. कॉलेज का नाम इंदिरा गांधी है तो इंदिरा गांधी के बारे में बताओ. ठीक है, टाइम पे ऐसे सवाल आते थे, बट यूपीएससी रिफॉर्म कर रहा है. यूपीएससी कभी भी एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं रखता. आप प्रीलिम्स में भी देखते हो, मेंस में भी देखते हो, और ऐसा नहीं है यूपीएससी उस पैटर्न पे जा नहीं सकता. वो चला जाएगा 5 साल बाद, क्या पता वापस वही पूछने लग जाए. यू कैनॉट प्रेडिक्ट दिस एग्जाम. इतने सालों में ये तो मुझे समझ आ गया, और आप लोगों को भी समझ आ गया होगा कि यू कैनॉट रियली प्रेडिक्ट दिस एग्जाम एट ऑल, ठीक है? एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, यस मिहिर, यू कैन राइट डाउन, ठीक है? कोई कुछ है नहीं तो कुछ बनाना नहीं है,
मिस्टर प्रोफेसर कुछ बनाना नहीं है, अगर कुछ नहीं है, जो है ऑनेस्टली वही बताना है. सर, आई वाज सेक्रेटरी ऑफ माय डिपार्टमेंटल सोसाइटी इन माय कॉलेज, कैन आई राइट दैट? यस, यू कैन राइट दैट अनुराग. अभी मैं आ रहा हूँ 7C में, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अभी ये सर्टिफिकेट वाली चीज अभी मत पूछो मुझसे. डू यू हैव टू सबमिट द सर्टिफिकेट? नहीं. कैन यू मेंशन अवार्ड्स वन इन क्लास 10th 11th 12th? आई वुड से 12th, बट दैट टू इफ गिवन बाय अ बोर्ड, मिस्टर कैप्टन. सर, आई फिल अप द NDA फॉर्म बट आई एम नॉट प्रेजेंट इन द एग्जाम. नहीं, अगर क्लियर नहीं किया है तो नहीं डालना है. अगर आपने NDA क्लियर किया है, मान लो ज्वाइन नहीं किया सर्विस, तो आप 7A में डाल सकते हो. बट अगर एग्जाम ही क्लियर नहीं किया, एग्जाम देने नहीं गए, तो उसका क्या फायदा? होम मिनिस्टर इन चिल्ड्रन पार्लियामेंट्री स्कूल, होम मिनिस्टर इन चिल्ड्रन पार्लियामेंट, इन स्कूल ट्रेजर, इन डिबेटिंग सोसाइटी, इन प्रेसिडेंट हिंदी क्लब सोसाइटी जिसमें चिल्ड्रन पार्लियामेंट और ट्रेजर का सर्टिफिकेट नहीं है. ठीक है, सर्टिफिकेट की इसमें जरूरत भी नहीं है शुभम, बिकॉज 7C को प्रूव करने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट आप ला भी नहीं सकते हो. कैसे लाओगे सर्टिफिकेट 7C को प्रूव करने के लिए? स्कूल वाले जब आपको बना देते हैं स्टूडेंट काउंसिल का पार्ट, तो आपको सर्टिफिकेट थोड़ी देते हैं उस चीज का. तो इट्स ओके. म्यूजिक टीम का पार्ट कोऑर्डिनेटर है बट सर्टिफिकेट नहीं है, चलेगा गीतांश. 7C के लिए, फॉर 7C इट्स ओके टू नॉट हैव अ सर्टिफिकेट, इट्स फाइन. दे विल ट्रस्ट यू बाय योर वर्ड्स, बिकॉज इसका सर्टिफिकेट प्रोक्योर करना बहुत मुश्किल है. जहां है लगा दो, बट जहां नहीं है इट्स ओके. ठीक है, कोई बहुत लोड नहीं है इस चीज पे. ठीक है, 8th क्लास का नहीं लिखना है, 9th क्लास का नहीं लिखना है. ईशा राज, 8, 9, 10th की कोई वैल्यू नहीं है. 12th की थोड़ी बहुत वैल्यू है, वो भी अगर आपको बोर्ड और उसमें नेशनल कुछ आ रहा है तो. ठीक है, तो 7C वी स्टार्ट फ्रॉम स्कूल, दैट्स वन. कॉलेज ऑफ कोर्स यू कैन राइट. कॉलेज को बिल्कुल नहीं छोड़ना. क्यों छोड़ना है? कॉलेज में आप उनकी लिंगो समझो. किसी सोसाइटी को आपने शुरू किया, ठीक है, आप गए, आपने वहां देखा डिबेट सोसाइटी नहीं है. आप स्कूल से डिबेट करते आ रहे थे, किसी कॉलेज में डिबेट सोसाइटी नहीं थी, आपने इनिशिएटिव लिया. फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में फाइट मारते मारते थर्ड ईयर में आपने एक सोसाइटी वहां स्टैब्लिश करा दी. तो इस कॉलेज के भी तो लफड़े होते हैं ना, पहले इससे बनाओ फिर उससे बनाओ फिर सोसाइटी से परमिशन लो टाइप्स. आपने स्टार्ट कर दिया. अब आप लिखिए फाउंडर डिबेट सोसाइटी कॉलेज. अब काफी है, कॉलेज का नाम लिखने की जरूरत नहीं है. फाउंडर डिबेट सोसाइटी एट कॉलेज. ठीक है, या फर्स्ट, या फिर आप ये तो ये सब कर सकते हैं कि सोसाइटी आपने शुरू की हो, या आपने कोई सोसाइटी को लीड किया हो, या तो स्टार्ट की हो, या किसी सोसाइटी के आप सेक्रेटरी बने, आप प्रेसिडेंट बने, आप वाइस प्रेसिडेंट बने. ये सब एक्सेप्टेड लैंग्वेज है. ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो दैट यू कैन बी प्रेसिडेंट डिबेटिंग सोसाइटी, सेक्रेटरी चेस सोसाइटी, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट लिटरेरी सोसाइटी, कॉलेज का जो वाइस प्रेसिडेंट पॉलिटिकल साइंस क्लब, राइट. अब वो क्लब का क्रिएटिव नाम मत लिखना, रिपब्लिका और ये सब जो कॉलेज वाले लिखते थे. अब ये सब नहीं. सेक्रेटरी पॉलिटिकल साइंस क्लब एट कॉलेज, प्रेसिडेंट इकोनॉमिक्स क्लब एट कॉलेज. ठीक है, बी वेरी वेरी क्रिएटिव, लेकिन उतना क्रिएटिव नहीं कि उनकी लैंग्वेज में ही समझना है. ठीक है, उनके अब 60 इयर्स ओल्ड को भी तो समझ आना चाहिए ना कि आप प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सब तो समझ पा रहे हैं. वो नहीं, अगर सोसाइटी नहीं, हाँ तो आपकी ऑनेस्टी है और क्या. कौन चेक करेगा आप जिले में करप्शन करोगे या नहीं? तो ऑनेस्टी है ना, एथिक्स है, तो सही है, कोई चेक नहीं कर रहा. सेक्शन सी हमें वो थोड़ा देता है. नहीं बच्चे, आप मान के चलो, ये रिफॉर्म आया क्यों? ये रिफॉर्म आया ही इसीलिए क्योंकि कोई चेक नहीं कर रहा था ना. करप्शन हो रहे थे, पूजा खेड़कर ने कर दिए ना गड़बड़े. पूजा खेड़कर जी की वजह से ही सब हुआ है. ठीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. तो ईमानदार आप रहेंगे तो आपको सर्विस में भी हेल्प करती है, कोई चेक नहीं करेगा. ठीक है, तो एक तो ये चीज कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, द एक्सेप्टेड लैंग्वेज इज व्हाट यू शुड बी राइटिंग. दैट्स वन. व्हाट्स नेक्स्ट इज दैट कि आप अगर मान लो मेंबर ही थे, ठीक है, आप मेस, हॉस्टल होता है, मेस होता है, ठीक है, और भी एसोसिएशंस होती हैं वेयर यू आर जस्ट अ मेंबर, लेकिन आपने बहुत काम किया सोसाइटी के लिए, लाइक आपने जी जान लगा के फाइट की, कुछ इंप्रूवमेंट लाए. आप उसको मैं क्रिएटिव लिबर्टी में कह सकता हूं कि आप मेंबर को एग्जीक्यूटिव मेंबर कर दो. ठीक है,
मेंबर को यू कैन डू इट एज एग्जीक्यूटिव मेंबर। अब इससे ये है कि आप ठीक है, आप इंपॉर्टेंट मेंबर थे। अगर आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी नहीं थे तो आप एग्जीक्यूटिव मेंबर थे। अब इससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ खास। एग्जीक्यूटिव मेंबर से ये हो गया कि अगर डेमोक्रेटिक सोसाइटी थी तो यू हैड द पावर टू वोट और यू हैड द पावर टू डिसाइड अपॉन थिंग्स। ठीक है, बट 7C में आपको लैंग्वेज प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऐसा ही लिखना है। स्कूल का पहले लिखना है, कॉलेज का बाद में लिखना है। ठीक है, कोशिश करना अगर स्पोर्ट्स ऊपर से आ रहा है, स्पोर्ट्स ए में भी आ रहा है तो बी में ना जाए। ऐसा ही नहीं क्रिकेट का फर्स्ट प्राइज आप यहां लिख डाल रहे हो, क्रिकेट टीम आप यहां लिख डाल रहे हो पार्टिसिपेटेड, और कैप्टन यहां डाल दे रहे हो, तो एक क्रिकेट ही आप 3 बार रिपीट कर रहे हो, तो आपका लॉस है, उनका लॉस नहीं है। आप अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो कि वो आपसे क्वेश्चन पूछे डाइवर्स थीम्स पे। ठीक है, तो कोशिश करो कि नई नई चीजें अगर हैं या की हैं तो वो लिख सकें। कई बार हमें समझ नहीं आती है ना, कई बार हमें सोचना पड़ता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोचो, अभी टाइम है। आप प्रीलिम्स के लिए भी तो पढ़ना है ना, हम 10 दिन ये तो नहीं कर सकते, लेकिन 1-2 दिन ढंग से सोचो, पूरा दिन इसी को डेडिकेट कर दो। 1-2 दिन मेंटर से बात करो, हमसे बात करो, और एक बार प्रूफ रीड करवा लो और सबमिट करो, प्रीलिम्स के लिए वापस तैयारी करो। ठीक है, तो ये वाली चीज है, समझ गए आप? यूज्ड टू डू स्टूडेंट काउंसलिंग इन स्कूल। Okay, sure. You can write that down in 7C. Kanchan, I won the first prize inter-house in debate and essay. I have official certificates. Yes, you can write that down in 7C, Kanchan. Yes, 7C आप लिख सकते हो कंचन, उसमें उस स्कूल की बात कर रहे हैं। Can I write about mess secretary of college? But currently I don't have certificate. Ayush, yes, you can write mess secretary of college. I hope you are not lying. Neil, sir, if we do not have any achievements in school or college, what should we do? Should we leave this? Ideally, yes, you should be leaving that and focusing more on your 7D section. Okay. Neil, Aishwarya, I was a part of NGO and internship in college. Can I mention that in 7C? Not only a part, but if you have led that NGO, if you probably were executive member of that NGO, as I said, then you can. Internship you can write in 7A. Aishwarya, internship you can write in 7A. NGO thing, if you were executive member, important member, you can write that down in 7C. What about sports captain in class 12? You can write that down in 7C, Raj. Sports captain is a valid position in 7C. Ayushi sir, what will we have an option to change? I don't know on this. I am not sure. Right now they have said you have an option to change, but what part, they don't have given a clear clarity on that. They might say later on that you can only add your work experience or examination if you have given any. So if you have an option right now, fill it properly with all the understanding. Do not predict the future with respect to UPSC. UPSC operates on present. So we are operating on present. This is what has been asked. I fill that. This is my job. Okay. Sir, topper of my chemistry batch in college department, which option? You can use this in 7A also. But yes, your college department 7A, Abhishek. Sir, apart from major BTech degree, I have done 2 minor degrees in economy and IR. Which section should I mention this? In the form itself, masters. Sir, we have to upload certificate at this stage itself. Yes, Ayushi, you have to. That's why itna taam-jham ho raha hai. Isha, can I mention class 12 certificates in calligraphy and Sulek and sports too? I was school head girl captain for 3 years. Yes, you can, Isha. You can write that down in 7C. Yes, Isha, you can write that down in 7C. I have an NCCA certificate, but my birth year is mentioned incorrectly. You should upload it, Neil. No worry. Okay, clear? 7C, the language, स्कूल पहले आएगा, कॉलेज बाद में आएगा, और क्या क्या लिखना है, इसमें कोई थीम नहीं है, बी ऑनेस्ट। ठीक है, थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी ले सकते हो, मेंबर का एग्जीक्यूटिव कर दिया, सेक्रेटरी का वाइस प्रेसिडेंट कर दिया, इतना चलेगा। बट 4th आए थे तो मैं 3rd प्राइज लिख रहा हूँ, इतना चलेगा। लेकिन झूठ नहीं बोलना है, एक्टिविटी नहीं की तो नहीं लिखना है। ठीक है, डोंट बी डिसऑनेस्ट। ठीक है, कूल, क्लियर।
अब आ जाते हैं आपके सबसे डिफिकल्ट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जिसको ब्लैंक छोड़ने का एडवाइस मैं किसी को भी नहीं दूंगा, ठीक है। इसको ब्लैंक छोड़ दोगे तो फिर तो बहुत डिफिकल्ट है। 7D कैसे किसी का ब्लैंक हो सकता है? यू कैन नॉट रियली स्टडी फॉर 24 आवर्स भाई, और वो मार्क्स में रिफ्लेक्ट भी नहीं हो रहा ना कि हम 24 घंटे पढ़ के भी आपके सीजी पे 5-6 ही पढ़े हुए हैं ग्रेजुएशन में, तो तो गड़बड़ तो है ही, कुछ तो आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तो आपको 7D में यू हैव टू थिंक अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे 2 चीजें, एक तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, ECA भी लिख सकते हो, और एक आपका इंटरेस्ट भी है। इंटरेस्ट में उन्होंने कहा है सच एज हॉबी बीइंग वन ऑफ द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट बहुत प्रकार के हो सकते हैं, उसमें इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है सच एज हॉबीज, और इसमें इन्होंने एटसेट्रा भी यूज किया है। तो यहां पे मेरे पास बहुत लिबर्टी है। इस सेक्शन को यूपीएससी ने इसलिए ही डाला है कि ठीक है, बहुत बच्चों का दर्द यही है कि ऊपर 3 में कुछ नहीं है, नहीं किया कुछ स्कूल में, नहीं किया कुछ कॉलेज में, जॉब भी नहीं की, पूरा जीवन लगा दिया एग्जाम में, लड़ धड़ के पहुंचे हैं यहां तक, अब बताओ। तो 7D है, ठीक है। यूपीएससी पढ़ रहे थे, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट आया, इकोनॉमी में इंटरेस्ट आया, बुक रीडिंग करने लग गए, हम नॉन फिक्शन पढ़ने लग गए एक जॉनर की, ये तो कर ही सकते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। इतना पढ़ते हैं, इतनी समाज में इंटरेस्ट आ जाती है, बुक रीडिंग तो डेवलप कर ही सकते हैं, और करनी भी चाहिए, ठीक है। आइडियली यू शुड ऑल्सो टॉक अबाउट व्हाट, you should also talk about what you have been doing now, okay, so it's also about what you have been doing, very very important, ठीक है। स्कूल से लेके अब तक कंसिस्टेंटली जो कर रहे हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है हॉबी में, ठीक है। अब मान लो क्रिकेट है, मैं जेन्युइनली पैशनेट हूं क्रिकेट को लेके, आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस माय स्कूल टाइम, मैं खेल रहा हूं, पहले खेलता था, यूपीएससी आया तो खेलना तो बंद ही कर दिया ऑफ कोर्स, लेकिन बीच बीच में स्कोर चेक करता रहा, कोई इंपॉर्टेंट सीरीज हो रही है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टाइप्स, इंडिया पाकिस्तान हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, आई फॉलो डिस्पाइट प्रीलिम्स एंड मेंस। तो मैं अपने हॉबी ईसीए में क्रिकेट डाल सकता हूं, एंड मुझे डालना भी चाहिए, फुटबॉल फॉर दैट मैटर सेम, ठीक है। अब इसी पे तो चीज है, अगर आप स्कूल से लेके अभी तक खेल रहे हो, लाइक यू आर रियली प्लेइंग, ठीक है, टाइम निकाल के सिंधी पार्क में खेल आते हो, सिंधी पार्क में खेलने देते हैं अभी ये, बैडमिंटन खेलने, क्रिकेट नहीं खेलने देते ना, हाँ ठीक है, हाँ 100%, 100%, 100%, राइट। सो सब डाल सकते हो, कोई इशू है ही नहीं इसमें। अब मुझे बताओ सिंधी पार्क में खेलने देते हैं अभी कि नहीं? मेरे टाइम में तो नहीं देते थे, बड़े एलीट लोग वहां पे बिल्कुल घेर के बैठ गए हैं उसको, एक तो कपल्स बैठ जाते हैं ओआरएन में, मुझे पता नहीं पढ़ने आते हैं कि क्या करने आते हैं, अभी भी चलता होगा वो सेम ऑफ कोर्स, उन सब से बच के रहो, ठीक है डजंट सॉल्व एनी पर्पस। चलो कमिंग बैक 7D, इंट्रोस्पेक्ट करो, ओके, इंट्रोस्पेक्ट करो कि अब तक क्या किया है स्कूल से लेके अब तक, और कौन सी चीज में कंसिस्टेंटली सबसे ज्यादा कर रहा हूं। क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, मैं अच्छे से पूरा देख, वॉलीबॉल का तो कुछ नहीं है, बास्केटबॉल भी देखते हैं बहुत लोग, स्कूल से ही फॉलो कर रहा हूं, तो लिख दो। फीफा फॉलो करते हैं कुछ लोग कोई लीग्स फॉलो करते हैं, ठीक है, मतलब वैसे नहीं देखेंगे लेकिन लीग को देखेंगे, क्रिकेट वैसे नहीं देखेंगे लेकिन वर्ल्ड कप देखेंगे, प्रॉब्ली चैंपियंस ट्रॉफी देखेंगे, लिखिए, ठीक है। कोई कल्ट है फॉलो करते, कुछ पैशनेट है, आप बिल्कुल बॉलीवुड को ट्रैक करते रहते हैं, लिख दो। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, तो आप ऐसे कर सकते हो, पॉलिटिकल एंथुजियास्ट, इंडियन पॉलिटिक्स एंथुजियास्ट, नहीं सिर्फ इंडियन पॉलिटिक्स एंथुजियास्ट, कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स एंथुजियास्ट। तो टीचिंग का प्रभाव हो रहा है, और क्या हो रहा है कि आप सेम लाइन लिख रहे नहीं, so it's contemporary Indian politics enthusiast, 100%, नहीं कवर हो जाएगा, कंटेम्प्रेरी यही तो हो गया ना, रिसेंट, कंटेम्प्रेरी मतलब ऐतिहासिक थोड़ी, कंटेम्प्रेरी इज व्हाट, रिसेंट,
ठीक है, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट एट ऑल. ठीक, यूट्यूब देखना इज जस्ट, उसमें भी कुछ थिंग्स है कि ये चीजें देखता हूँ तो यूट्यूब देखना, नो कम ऑन गाइस, यू कैन नॉट बी राइटिंग यूट्यूब देखना. मीम सोसाइटी वाले के बता दो इतना नहीं, ओटीटी इज फाइन. मोदी जी ने अभी क्रिएटर्स अवार्ड दिए थे सर यूट्यूब क्रिएटर्स को, तो प्रधानमंत्री जब इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं तो उनका खुद का यूट्यूब चैनल है जिसमें 20 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो इट्स अ वेरी. देखो, फिर अगर आप यूट्यूब को लेके सच में बहुत पैशनेट हो, देन यू गिव यूट्यूब अ थीम कि मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ यूट्यूब पे. ठीक है, पॉडकास्ट, वॉचिंग पॉलिटिकल पॉडकास्ट ऑन यूट्यूब. अगर मान लो ऐसे लिखूं कि मैं सिर्फ पॉडकास्ट देखता हूं वर्सेस वॉचिंग पॉलिटिकल पॉडकास्ट ऑन यूट्यूब, तो मेरे पास क्या थीम खुल रही है? पॉडकास्ट तो खुल ही रही है, लेकिन पॉडकास्ट मैं स्पेसिफिकली यूट्यूब पे देख रहा हूं, मैं स्पॉटिफाई पे नहीं सुन रहा हूं. तो मतलब विजुअल है, मेरा मीडियम इज विजुअल, राइट? तो वो जिस भी चीज को ऑनेस्टली आप करते हो, वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी आप करते हो, कुछ आप देखते हो, पॉडकास्ट सुनते हो तो लिसनिंग टू पॉडकास्ट, पॉडकास्ट देखते हो तो वॉचिंग पॉडकास्ट. ऑन यूट्यूब डाल दोगे तो एक अलग जॉनर खुल जाएगा कि इस टीवी मीडिया डिक्लाइनिंग, लोग यूट्यूब की तरफ क्यों भाग रहे हैं. ठीक है, व्हाट इज दिस यूट्यूब इंडस्ट्री ऑल अबाउट? आप मनपसंद चीजें कर सकते हो, अपने टाइम के लिए कर सकते हो, राइट? सर, यू एंजॉय ब्रांडिंग, हैव हेल्प फ्यू यूट्यूबर्स हाउ टू राइट. ठीक है, अच्छा है, किसी का भला हो रहा है मुझे देख के, इट्स गुड. सर, 7B volleyball runner up certificate I have, but that's one time I've played. Should I add as a theme? 7B में नहीं, आयुषी, वन टाइम पे आई वुड नॉट एम्फेसाइज टू ऐड, बिकॉज वो चीज डजंट रियली सर्व्स योर पर्पस. ओके सर, आई एम, ठीक है. उसके बाद सर, एनिमी देखना हॉबी में लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं. दिनेश, कोरियन ड्रामा तक लिख सकते हैं आप. आदित्य पांडे थे रैंक 48, उनका कोरियन ड्रामा ही था, रामचरितमानस और कोरियन ड्रामा. बिल्कुल लिख सकते हैं, एनिमी लिख सकते हैं. बहुत सारे डैप्स इस साल हैं जो एनिमी लिखते हैं. एनिमी कोई हल्की चीज थोड़ी है आजकल, एवरीबडी इज वॉचिंग इट. अब दिक्कत क्या है कि उस जमाने के लोग हैं. अच्छा, लास्ट टू लास्ट ईयर एक स्टूडेंट थी, उसका पता नहीं अभी हुआ कि नहीं, बहुत टाइम से इंटरव्यू दे रही थी, इस बार नहीं आई. 2 साल से कंसिस्टेंटली आ रही थी 22-23 में. तो उसका क्या था, उसका एकदम वो हो गया, एनिमी लिखा. अब उससे क्वेश्चन पूछने लग गए टॉम एंड जेरी के क्योंकि फॉर देम एनिमी इज नथिंग बट कार्टून्स, टॉम एंड जेरी. ठीक है, तो वो एक पूरी चीज जो है, यू हैव टू फिगर आउट कि यू आर डीलिंग विथ पीपल ऑफ 60s, लाइक जो 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, probably there's very senior people, they won't understand the anime, the graphics, the visual representation, the access of visual representation you guys have. 100% लिख सकते हो, स्टैंडर्ड कॉमेडी भी लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते? वॉचिंग नहीं, अब देखो नहीं, पूरी डिबेट देखो, यूट्यूब के फिर मेटा की डिबेट भी खुलेगी. यूट्यूब देखो, सुनो, देखो, यूट्यूब जब लिखते हो तो आपको पता होना चाहिए यूट्यूब किसका पार्ट है. करेक्ट. इंडियन नहीं, वॉचिंग स्टैंडर्ड कॉमेडी. ठीक है, ठीक है. नहीं, इंडियन क्या, फिर वो आपसे पूछेंगे ना, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे. हाँ, हिंदी का जॉनर देना चाहो तो दे दो, देयर इज नो हार्म इन गिविंग अ जॉनर. बट अगर आप देते हो वॉचिंग स्टैंड अप कॉमेडी, इंडियन ऐसा तो नहीं है, कंटेम्प्रेरी कर सकते हो, करना चाहो कर दो, हिंदी कर दो. पॉलिटिकल सटायर इंडियन देखो, स्टैंड अप पॉलिटिकल सटायर इज ऑल्सो गुड, स्टैंड अप कॉमेडी इज अ गुड थीम. ठीक है, अगर आप वॉचिंग स्टैंड अप कॉमेडी भी लिख दोगे तो दे वोंट आस्क कि, या तो पूछेंगे आपका फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन कौन है, ये पूछेंगे, तो उसमें ऑटोमेटिकली वो समझ आ जाएगा कि आप इंडियन हो कि वेस्टर्न जा रहे हो वहां पे. बट क्वेश्चन वो भी नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा डिक्लाइन, फ्रीडम, जो लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं, इज इट हार्मफुल और नॉट. ठीक है, आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हो, या आप क्या बच्चे के अराउंड सुन सकते हो, वो बच्चा क्या सीख रहा है, वो क्या समाज में दे रहा है. ठीक है, तो ये जो नए नए टाइप के एंटरटेनमेंट शोज आ रहे हैं, बिकॉज ये सब ट्रैक करते रहते हैं, उनको भी पता है समय रहना क्या क्या कर रहे हैं. ठीक है, एंड इट्स ओके, इट्स फन, फाइनली वी आर एडल्ट्स. ठीक है, चलता है, वी हैव क्रॉस दैट एज. बट देयर आर टीनेजर्स, देयर आर पीपल हु आर like they're child, they're literally child.
कोई भी देख रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो आपको प्रोटेक्शन बिल की तरफ भी जाता है। आपको इस पूरी इंडस्ट्री पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो यू एंजॉय ब्रांडिंग, हाउ टू राइट ब्रांडिंग इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट, आयुषी बता दो। ईशा, कुकिंग, रीडिंग, वॉचिंग मूवीज एंड शोज, टीचिंग, आई हैव डन मास्टर्स, आई हैव गिवन एग्जाम, प्लेइंग बैडमिंटन एंड आउटडोर गेम्स, स्केचिंग, पेंटिंग। ईशा, इतनी सारी लिखने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू राइट कुकिंग, यू कैन स्पेसिफाई अ कुजीन, इंडियन, वेस्टर्न, चाइनीज, राजस्थानी, ये कुछ भी कर सकते हो। कुजीन इज अ गुड आइडिया, उसको जॉनर दे दो। रीडिंग को भी जॉनर दे सकते हो आप, ठीक है। रीडिंग फिक्शन, नॉन फिक्शन। डिराइविंग वैल्यूज फ्रॉम भगवद गीता विल बी अ राइट वर्ड। रीडिंग की जगह इन 70 इफ आई राइट डिराइविंग वैल्यूज फ्रॉम भगवद गीता, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, ये क्योंकि वैल्यू है ना, और फिर उसके रीडिंग पे फोकस नहीं आ रहा है। आपने एक जॉनर भी स्पेसिफाई कर दिया है कि भगवद गीता की वैल्यू है, वो वैल्यू वी आर पुटिंग एवरीवेयर, ठीक है, समझ रहे हो? तो वो वाली एक चीज है जिसको आपको एम्फेसाइज करना है कि आपको कीवर्ड्स निचोड़ के निकालने की क्या लगा रहे हो आप, ठीक है। रैंडम टेक्स्ट रीडिंग, हाँ, रैंडम टेक्स्ट रीडिंग, रैंडम टेक्स्ट रीडिंग, क्या रैंडम टेक्स्ट पढ़ते हो भाई? शॉर्ट स्टोरी से कुछ भी सर, मुझे भी नहीं पता, लेकिन जैसे 40-50 किताबें बहुत अलग-अलग जॉनर की, कोई पॉलिटिकल है, कोई हिंदी लिटरेचर से रिलेटेड है, कोई पोएट्री से रिलेटेड है, और उनके अलावा भी कोई मोबाइल में कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई और मैगजीन्स पढ़ ली, अखबार पढ़ लिया, ये हॉबी टाइप की है सर, जब भी फ्री रहता हूं इसलिए। नहीं, ओल्ड टेक्स्ट तो नहीं, आपको उसको जॉनर देना पड़ेगा, तो ठीक है। रैंडम टेक्स्ट रीडिंग, नहीं देखो, आपका वैसे एक पॉलिटिकल तो बन ही रहा है, तो फिर थोड़ा सोचो। पॉलिटिक्स एक खुद ही अपने आप में बड़ी थीम है। अब मैं इसमें रीडिंग घुसाऊंगा तो मैं और डिफिकल्ट हो जाऊंगा। अब उसको मैं डाइवर्स करने के लिए क्या करूं? अगर प्रॉब्लम मेरे पास भगवद गीता का ऑप्शन होता, जैसे इनके पास भगवद गीता का ऑप्शन है और ये पॉलिटिक्स भी देखती हैं आपकी तरह, तो मेरे पास इंटरसेक्शन हो जाता, हाँ, जैसे वो कोरियन ठीक है, ड्रामा कि कृष्णा पॉलिटिक्स का बताओ, या कृष्ण राज्य के बारे में बताओ, या कृष्ण धर्म के बारे में बताओ, समझ रहे हो? अपने डैफ को ऐसे क्लेवरली रखना है कि इंटरसेक्शन भी बने। हाँ जी, किन किन डायमेंशन, ऑफ कोर्स आइडिया है मुझे। ये आप अगर वैल्यू की बात करेंगे तो एक तो करंट टाइम्स में कितना रेलेवेंट है, ठीक है। आप जिस इंडस्ट्री में हैं, या आपका जो स्टेट खुलेगा, या और भी इंटरसेक्शंस खुलेंगे डैफ के, उसमें वो वैल्यूज कितनी इंपॉर्टेंट हैं, क्या सिग्निफिकेंट चेंज आपकी लाइफ में आया है, आर यू एबल टू एग्जीक्यूट इट, या सिर्फ पढ़ती हो? एग्जीक्यूट करती हो तो हाउ डू यू, कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, ठीक है। तो ये सब तो खुलेगा ही। देन ऑफ कोर्स कृष्णा इटसेल्फ इज अ थीम, बहुत ज्यादा, ठीक है। वृंदावन का टर्नओवर हो गया है बिल्कुल ही, थैंक्स टू प्रेमानंद महाराज जी, राइट। सबको राधा राधा करवा रहे हैं वो, तो उससे क्या है, वो भी कृष्णा की थीम में चला गया ना, वो सेक्ट है एकदम, ठीक है। तो उसका एक टूरिज्म एंगल भी हो गया, कृष्णा भक्ति हो गया, वो सेक्ट हो गए, महाभारत तो हो ही गया ऑफ कोर्स, ठीक है। तो वो सब आपको साइड थीम्स भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। बट महाभारत में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, वृंदावन में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट प्रोबेबली वो वैल्यू और भगवत गीता पे ही रहेंगे। दैट्स वाई वो लिखवाया डिराइविंग वैल्यूज ऑफ भगवत गीता। हाँ, एंगेजिंग इन कन्वर्सेशंस विद स्ट्रेंजर्स, विद स्ट्रेंजर्स, कैसे बात करते हो यार तुम स्ट्रेंजर से? अरे नहीं 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 नहीं, ये लाइक ठीक है, इट्स फाइन, बट भाई यूपीएससी का इंटरव्यू भी दे रहे हो ना, तो उस इंस्टीट्यूशन पे भी तो सोचो कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट्स विद स्क्रैप मटेरियल्स, हाँ बिल्कुल, ये कर सकते हो आप। बेस्ट ऑफ वेस्ट कर सकते हो, है ना। बेस्ट यूज ऑफ वेस्ट क्या कहते हैं उसको, कीवर्ड क्या है वो, वेस्ट, बेस्ट टू वेस्ट, क्या, वेस्ट टू बेस्ट क्या कहते हैं उसको, बेस्ट ऑफ, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, है ना। ऐसे कुछ करके क्रिएटिव कीवर्ड बना लो, ठीक है, समझ गए। तो इसमें एनीथिंग दैट यू डू, हॉबी क्या है, हॉबी वी डू फॉर फन, डेली नहीं करते प्रोबेबली, लेकिन इट्स आर एस्केप मैकेनिज्म। लाइफ में डिप्रेशन आता है, सैडनेस आती है, कुछ भी हो गया, पढ़ाई नहीं हो रही, ब्रेकअप हो गया, आप हॉबी की तरफ चले गए, ठीक है। हॉबी आपको लाइफ में एक वैल्यू एडिशन देती है, आपका माइंड फोकस डिस्ट्रैक्ट कर देती है एग्जिस्टिंग डिप्रेशन से, करेक्ट। तो आप हॉबीज को ऐसे लिखो, म्यूजिक है म्यूजिक लिखो, कुछ देखते हो वो लिखो, कुछ सुनते हो वो लिखो, कुछ पढ़ते हो वो लिखो,
which is not UPSC, that you do on a everyday basis. ठीक है, अंडरस्टूड? तो ऐसे हमें 7D बनाना है, हमें थीम्स भी बनानी है. अब इन्होंने अगर स्पेंडिंग टाइम से पेट डॉग्स लिखा है तो उस टाइम वो स्ट्रे डॉग्स वाला इशू भी बहुत आ रहा था. ठीक है, आई थिंक रॉटवाइलर था जो काट ले रहा था नेबर्स को बहुत ज्यादा नोएडा वोएडा में. इनके इंटरव्यू के टाइम में वो थीम भी थी, तो वो पूछा भी गया था कि इनका क्या करें, इनको कैसे कंट्रोल करें, स्ट्रे डॉग्स के लिए और क्या करें. ठीक है, तो सिर्फ डॉग्स लिख के आप बचोगे नहीं, आप पूरी थीम पकड़ोगे उसकी. ठीक है, सिमिलरली जैसे इनका राइटिंग बुक रिव्यू भी है और ये करती भी हैं. ठीक है, ये बुक रिव्यू करती भी अपने इंस्टाग्राम पे, तो ये जेन्युइन चीज है. ऐसी चीज बिल्कुल लिखो आप, थोड़ा हटके बना रही है. वो बुक रिव्यू लिख रही हैं, वो बुक रिव्यू पढ़ नहीं रही हैं. शी इज रीडिंग अ बुक एंड शी इज रिव्यूइंग अ बुक और वो उसको लिख रही हैं पब्लिकली. दैट्स अ वेरी गुड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी टू राइट. ठीक है, तो अच्छा कुछ नहीं आ रहा तो वो योगा और जिम ट्रेनिंग ये सब तो ऑफ कोर्स लिखना ही है. खाली तो इसको छोड़ने का मैं रिकमेंडेशन दूंगा ही नहीं. ठीक है, जिम तो हम सभी जा रहे हैं आजकल आई गेस. अगर जिम नहीं जा रहे हैं तो योगा कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं तो रनिंग कर रहे हैं. फिजिकल मूवमेंट तो थोड़ी बहुत चली रही है ना कार्डियो की. हाँ, वर्कआउट तो सभी कर रहे हैं, तो वो आप जरूर लिखिए. ठीक है, नहीं कुछ है, कुछ अच्छा नहीं है लिखने के लिए. कुकिंग है, खाना तो हम बना रहे हैं, दिल्ली में रहते हैं, प्रॉब्ली खाना बना रहे हैं. नहीं बना रहे तो ठीक है, कोई क्यूजीन प्रॉबेबली होगी. सो वैसे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो.